So in the last class, I finished your simplex method when you are having initial basic feasible solution and problem is of maximization type and all the constraints are of less than equal to type. है ना? So because of less than equality, we use select variables and this select variable always gives you an initial basic feasible solution. है ना? This we have discussed so far. Problems, some problems you can try by yourself. In the last class, I have discussed problem number 413, where you were getting unbounded solution. है ना? So as I told you, if you take the most negative value of del j and if corresponding to it all the value of the column is negative, it is the indication of unbounded solution, because in that case you will not getting any leaving variable. Is it clear? Yes, sir. So that is our indication of unbounded solution. So you should know all these things. Somebody may ask how to identify unbounded solution in simplex method, how to identify infeasible solution, how to identify alternative optima. This thing you should know how you can identify. Na? So in the algorithm itself, it was there. So these are some problems which I am giving you. You will do it on your home assignment copy. 1-2 problem I am giving. This 416, I think it is alternative optima. If you will solve it, you will see it. And then 422 problem is there, page number 106. These 3 problems you will try and then see what the cases are arising. Okay. So next, simplex method means next case when you have less than equality, when you have greater than equal to in the constraint, है ना? As I told you in last class also, when constraints having greater than equal to type of sign, है ना? This type of inequality. So it means what? Now you know you will not getting initial basic feasible solution, because now you have to use your surplus variables, and because the coefficient of surplus variable is negative, you will not finding any starting initial basic feasible solution. Huh? This thing I told you. Like suppose if you have some x1 plus x2 greater than equal to some b1. So when you will write it into equality for using solving for applying simplex method, what you will do? You will write x1 plus x2 minus s1 is equal to b1. And you know, because the coefficient of s1 is negative, so it will not give you. यहाँ पर a1 a2 coefficient ले लो. If you want to write in general, a1 a2. So now it is -1. So when you will take in the matrix form, it is not identity matrix. So here for getting identity matrix, I have to add one variable which is called artificial variable. Artificial variable. है ना? Why artificial? Because it does not play any role in solving the system of equation or in solving the objective of the problem. But to apply the method, we have to take this as an artificial variable. So there are two type of methods whenever you have this greater than equal to constraint. First method is called artificial method, or two-phase method. Two-phase method. Why two-phase method? Because when you are applying this a1 artificial variable, है so I am using this variable only for the solving the problem. So in fact, they does not have any role in the problem. So what I will do, my first objective is what? Okay, remove this artificial variable, because when you will construct your simplex table, you have to improve, you have to remove this artificial variable. So in phase 1, my objective is remove this artificial variable, and in phase 2, our objective will be what? Solve the problem. So it is, that's why it is called two-phase method. And I will explain in the problem, I will explain the algorithm.
इस प्रॉब्लम को हम 2 फेसेस में लेके चलेंगे. ओके, फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में आई विल कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करेंगे पहले फेज 1 में, और जब वो रिमूव हो जाएगा देन वी विल गो टू फेज 2. फेज 2 विल बी सेम एज योर सिंप्लेक्स मेथड. एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड बिग एम मेथड. बिग एम method, or also called penalty method. Penalty method. These two methods are there which we can apply for solving this greater than equal to type problems where your constraints will be having surplus variable. Okay, so let me start with your two-phase method. So algorithm is simple. Firstly, I am taking two-phase method. Okay, Faizan Safi, Yes, sir. method is clear when we will be using these two methods. Yes, sir. Where is Abhilash? Abhilash is absent today. सर होम असाइनमेंट के क्वेश्चन आप भेजेंगे सर? ये आपको बुक शेयर कर तो दिए मैंने पीडीएफ, उसमें पेज नंबर लिख दिया है मैंने, प्रॉब्लम लिख दी है. प्रॉब्लम वहाँ से कॉपी कीजिए, अनसोल्व प्रॉब्लम से. ये यू ऑलरेडी हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक. So I have already written the page number and question number. So you just write see the problem 414 and solve it. 416 page 106. Okay. If you have any doubt, firstly you discuss with your friends, with your group, and still if it is not solving, then you can discuss in the class. पहले आप खुद solve करेंगे. So I am taking now first is two-phase method. Two-phase method. So it's algorithm. First I am taking algorithm. First step, initial steps are same. Your LPP should be in standard form. Write your LPP in standard form. Into standard form, है ना? Standard means what? It should be of maximization type and all the inequalities into equalities. है ना? That is standard form which you have studied the equations which is called. Now step 2, if you change it and there is a starting basic feasible solution. No? If there is already starting basic feasible solution, go to phase 2. Go to phase 2. Starting basic feasible solution means what? If you are getting initially your identity matrix, आपने n minus m variables को 0 put किया, you will be getting an m cross m sub matrix, है ना? So if your m cross m sub matrix is an identity matrix, if it is an identity matrix, so it is called your initial basic feasible solution. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डायरेक्ट यू कैन गो फेज 2. फेज 2 आपका वही सिंप्लेक्स मेथड है. द पॉइंट इफ इट इज नॉट, है ना, इफ इट इज नॉट आइडेंटिटी, है ना, इफ इट इज नॉट, है ना, थर्ड स्टेप में लिख दे रहा हूँ, इफ इट इज नॉट देन go to the phase 1. Then go to the phase 1. Phase 1. So what is phase 1? phase 1 में हमें क्या करना होगा? तो phase 1 का फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ये, या प्रॉब्लम का फोर्थ स्टेप मैं लिख सकता हूँ. You have to add what? Artificial variables, है ना? Add artificial variables because you will be not getting initial basic feasible solution. Add artificial variables to the left side of each equation that does not form basis matrix, है ना?
मीन्स व्हाट, डज नॉट फॉर्म बेसिस मैट्रिक्स मीन्स वही कि जो आपके पास इक्वेशन जहां जहां आपने सरप्लस वेरिएबल्स यूज किए होंगे. So when you will be using surplus variables, you have to add one artificial variable, है ना, to change the problem into initial basic feasible solution, to get the initial basic feasible solution. So you have to use your artificial variables. Construct now. So now you will be getting a system equation carrying your variables, your surplus select variables, and some artificial variables. So our first objective is to remove this artificial variable. For that, what we will do, we will construct an auxiliary ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हम एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे जो प्रॉब्लम में गिवन है, अभी उसको उस पर नहीं जाएंगे. वी विल कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी, है ना, एक टेम्परेरी ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे. उसमें हम रखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an. उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में व्हाट विल बी हैविंग द डिसीजन वेरिएबल्स, all the artificial variables will be there only. These all are artificial variables. These AI are artificial variables. Okay. तो ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना क्यों है आपको? What is the why I am taking minimization? Any idea? Because we want to remove artificial variables. Yes, exactly. Because we want to remove the artificial variables, है ना? So we want to minimize it. और minimize का मतलब कितना? कि we want कि it should be zero. भाई मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं? जीरो तक. तो हमें इसको मिनिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी, क्योंकि इसे हमने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिया है. तो इसलिए आई विल चूज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन ऑफ z a1 प्लस a2 an. अब हमारी क्योंकि एक सिंप्लेक्स टेबल बनानी है फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यू नो कि सिंप्लेक्स में योर प्रॉब्लम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद मैक्सिमाइजेशन. तो आई विल चेंज इट इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो आई कैन राइट मैक्सिमाइज ऑफ z स्टार इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस a2 एंड सो ऑन माइनस an ना. लेंगे मिनिमाइजेशन ही, लेकिन उसको फिर मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर देंगे क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल करना है सिंप्लेक्स में. Simplex may should be always maximization, that is the first algorithm. And of course, these AI are always satisfying non-negative restriction greater than equal to 0. तो अभी जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फेज 1 में, उस फेज 1 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉब्लम वाला नहीं लेना है ना, जो प्रॉब्लम में गिवन होगा. अभी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके चलना है न्यू विच वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फेज 1 कैरिंग ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. यहाँ पे कोई सरप्लस स्लैक या डिसीजन वेरिएबल नहीं आएगा. ठीक है. अब ये आपके पास एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया और कॉन्स्टेंट्स वही हैं आपके पास जो आपने बना लिए. कॉन्स्टेंट सेम रखेंगे हम, which will be having your decision variables, your select surplus variables and artificial variables. Only objective function will be new. इसलिए मैंने इसको auxiliary objective function कहा है ना. Next step is what? Fifth step after constructing this. Fifth step is now apply simplex method. Now I will apply simplex method. To the above constructed LPP, जो हमने न्यू कंस्ट्रक्ट करी है LPP, है ना, जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है और कॉन्स्टेंट्स लिए. सो 3 केसेस में अराइज द फॉलोइंग 3 केसेस में अराइज. 3 केसेस वहां पर पॉसिबल होंगे आपके पास जो अराइज होंगे. कब? जब आप सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे फेज 1 की. फर्स्ट केस में भी कि when you will solving your at the last step your max of z star it is less than 0, it is coming negative, and at least one artificial variable is present in the basis with positive values. कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है विद पॉजिटिव वैल्यू. तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल शुड रिमूव फ्रॉम द बेसिस, क्योंकि बेसिस के अंदर अगर होंगे तो इनकी कुछ वैल्यू अगर है पॉजिटिव मान लीजिए, है ना, ए इज कमिंग सम 1 2 और समथिंग,
तो इसका मतलब इन दिस केस द ओरिजिनल LPP जो हमारी प्रॉब्लम गिवन थी, द ओरिजिनल LPP हैज इनफीजिबल सॉल्यूशन, है ना, हैज इनफीजिबल सॉल्यूशन। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज मैक्सिमाइजेशन z इज कमिंग लेस देन 0, वैल्यू जो आ रही है निगेटिव आ रही है ना, और बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है विद सम पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इज अ केस ऑफ इनफीजिबल सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशन मींस, इनफीजिबल सॉल्यूशन मींस क्या होता है, नो कॉमन रीजन, ग्राफिकल में बताया था आपको, तो इट विल बी हैविंग इनफीजिबल सॉल्यूशन। सेकंड केस में अराइज max of z star is equal to 0 and at least one artificial variable is present in the basis with zero value, है ना। मैक्स भी 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या, अब 0 वैल्यू मीन्स व्हाट, कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका एक तरीके से रिमूव हो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इट हैज नो रोल नाउ। तो नाउ टू गेट basic feasible solution we may proceed, है ना, we may proceed to phase 2। यहाँ से हम फेज 2 पे जा सकते हैं, फेज 2 में बताऊंगा अभी क्या है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव जो था कि आपके पास मैक्सिमाइजेशन z 0 आ गया, यानी कि मिनिमाइजेशन z 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे वो रिमूव हो गए, सबकी वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम फेज 2 पे जा सकते हैं। थर्ड, max of z star is 0 and no artificial variable is present in the basis, है ना। ये भी केस हो सकता है कि जब आप सॉल्व करेंगे फेज 1 में बाय सिंप्लेक्स मेथड, तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे वो सारे रिमूव हो जाए, आपको जो मोस्ट मिनिमम रेशियो में मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो करस्पॉन्डिंग टू आर्टिफिशियल वैल्यू अगर मिलेगी, तो यू नो योर आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी रिमूविंग हियर। So if no artificial variable present in this case also, in this case a basic feasible solution to the original LPP has been found, go to phase 2, है ना। इस केस में भी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव था वो सॉल्व हो गया, अब हम फेज 2 पे जा सकते हैं। तो इन दो केस में हम फेज 2 पे जा सकते हैं जब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल की या तो 0 वैल्यू है या प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, फेज 2 क्या है, फेज 2 सिंपल वही है आपका, जब आप फेज 2 पे आएंगे तो इट इज योर फेज 2। इसमें सर प्रॉब्लम थोड़ा बैक कर, सर थोड़ा बैक कर दीजिए। कर दिया, इसे मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा ना आपको तो समझ में आ जाएगा इजीली बिल्कुल कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो लिख लो, लेकिन जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी ना तो स्टेप्स आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि सर ने क्या लिखा था। स्नैपशॉट ले लिया करो भाई दायान, स्नैपशॉट ले लो, बाद में लिख लिया करो आराम से, मोबाइल से स्नैपशॉट ले लो इसका। सर लैपटॉप पे हो रही है क्लास। अच्छा ओ, तो इसमें पेज सेव का ऑप्शन नहीं हो, मेरे पास तो होता ऑप्शन सेव का। वैसे ये मेरे इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने यही लिखा हुआ है शॉर्ट में, ऐसे ही जो मेरे नोट शेयर किए ना आपको मैंने, उसमें भी लिखा हुआ है। सर आगे कर लीजिए सर। चलो अब फेज 2 में हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कितने लिए थे मैंने, 5 ले लिए थे, चलो तो 6 स्टेप है फेज 2 का, बस ये लास्ट स्टेप है फेज 2 में। अब नाउ आई विल टेक द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो नाउ कंसीडर, क्योंकि ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम हो गया, उसकी वैल्यू 0 आ गई आपके पास, सो नाउ कंसीडर द ऑप्टिमम BFS basic feasible solution of phase 1 as a starting
as a starting basic solution for the original LPP. मीन्स कि जो आपका फेज 1 का जो लास्ट आइटरेटेड टेबल आई होगी आपके पास, जो लास्ट आइटरेशन आया था, है ना, उसमें जो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल के आया होगा, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, वो हमारा इसका स्टार्टिंग हो जाएगा ओरिजिनल एलपीपी का, है ना। फिर फेज 1 का आपका ऑप्टिमम बीएफएस क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 आ जाएंगे, x1 x2 x3 कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, s1 s2 कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, तो वही आपका स्टार्टिंग बीएफएस होगा फॉर ओरिजिनल एलपीपी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो असाइन ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, कोएफिशिएंट्स टू द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज थी वो लिखेंगे इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड a value 0 to artificial variable, जब टू आर्टिफिशियल वेरिएबल, जब हम न्यू फेज 2 की टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स वाली आर्टिफिशियल वेरिएबल, that appears at 0 value in the final simplex table of final one, है ना, and apply simplex method as usual to get an optimum solution. Okay, of the given problem, original problem. तो ये हमें यहाँ पर काम करना है. Let us take one problem very quickly. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर I have taken infeasible है यहाँ पर, तो चलो यार प्रॉब्लम ले लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 425 ले लेता हूँ मैं. 425 पेज नंबर 109. use two phase method to solve. Use two phase method to solve. अगर टू फेज मेथड का मेंशन नहीं किया हुआ तब भी आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपकी टू फेज से या बिग एम मेथड से सॉल्व होगी, है ना, क्योंकि उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा. क्यों भाई दयान खान? जी सर. है ना, देखिए ये एक प्रॉब्लम मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 लेस देन इक्वल टू 76. 8x1 minus 3x2 plus 6x3 less than equal to 50, and construction these are given x1 x2 x3 greater than equal to 0. ओके, सैम्पल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है आप कहीं से भी किसी बुक से ले सकते हैं. मेथड यू शुड अंडरस्टैंड द मेथड. अब यहाँ पर देखो, इफ यू विल सी यू कैन सी कि यार यहाँ पे तो ऑल द इक्वलिटीज आर लेस देन इक्वल टू, सो हियर वी कैन यूज द सिंप्लेक्स मेथड, नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड, है ना. लेकिन इट इज नॉट द केस. लेस देन इक्वल टू है इक्वलिटी, लेकिन एक इक्वलिटी जो है वो इक्वल है. ओके, और इसका कोएफिशिएंट क्या हो यहाँ पे, सॉरी 20 है, 0 नहीं है 20 है, 2020. ओके, अगर 0 होता तो फिर हमारा यहाँ विदाउट टू फेज से हो जाता इजीली. ध्यान रखना, टू फेज मेथड हमें जब भी लगाना है जब वी आर अनेबल टू गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, उसका इस्तेमाल ही तब होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है. तो यहाँ पर इफ यू सी, क्या मैं इसको विदाउट टू फेज मेथड, विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये बताओ पहले तो. बताइए एनीवन.
Can I solve this problem without using artificial variable? क्यों भाई? विवेक दीक्षित कहाँ है? विवेक दीक्षित 18 MB 113। यस सर। बताइए पंडित जी, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? Without artificial variable, can it be solved? First question is that. क्या देखना पड़ेगा आपको? You have to see only whether we are getting initial basic feasible solution or not. It means Yes, whether sir. we are getting an identity matrix or not. बताओ, इसकी अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं सपोज ऐसी, है ना, एक रफ काम करते हैं, चेक करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम करनी कैसे है हमें। अगर यही पता नहीं होगा तो कैसे करोगे? आपने कहा Yes, sir. इसकी हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 1 यस सर। -6 आएगा, है ना। सपोज आपने कहा ये तो इक्वालिटी है, तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे आप, है ना, ऐड करने के बाद। देन यू विल टेक 6 5 10, यहाँ पर आप s1 ऐड कर देंगे प्लस s1, तो 1 0। हियर यू विल बी टेकिंग 8 -3 6, s2 ऐड करोगे तो 0 1। देखो, ये तो करेंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इक्वालिटी थी। भाई आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर मैं एक s1 ऐड कर दूं तो ये इक्वालिटी बन जाएगी, और लेट अस टेक हियर ऐड s2, ये इक्वालिटी बन गई। अब आपके पास ये मिल रही है। ओके, तो यू गॉट 3 2 5। 5 आपके पास अननोन होगा अगर मैंने ऐड नहीं किया कुछ यहाँ पे। अगर आप सोचते क्या इक्वालिटी है, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास 5 वेरिएबल्स हो गए, 3 इक्वेशंस है। तो आपने कहा 2 को हम 0 पुट कर देंगे, 5 में n माइनस m, है ना, m 3 है। अब आपका जो m आया, m बाई m, m कितना है 3। तो क्या कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है आपको यहाँ पे? No, sir. नहीं मिल रही है। अब आप कहेंगे सर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में -6 से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगी। ऐसा है पॉसिबल क्या? आप कहेंगे सर मैं -6 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, लेकिन तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं होगा। -6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके पास 10 और 6 है, ये 0 0 नहीं है। दूसरी चीज, x3 की कॉस्ट वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे। तीसरा ये कि जब आप -6 से डिवाइड करोगे तो bi जो है वो आपका आ जाएगा -20/6, और ये हमेशा bi क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन नॉट solve this problem without introducing artificial variable। क्लियर है इस प्रॉब्लम में? Yes, sir. अब आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कहाँ यूज करें बताओ? देखो आपको सेकंड और थर्ड में तो मिल रहा है, यानी मुझे 1, अगर 1 और आ जाए 1 0 0 तो काम हो जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे? Yes. अगर यहाँ पर मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दूं इस जगह +a1, तो आपके पास वेरिएबल एक बढ़ जाएंगे, कॉलम बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 -6 1 0 0 1. 0 1 0 0, ये एक बन जाएगी। देखो है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम देख के यू कैन आइडेंटिफाई कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना है और कहाँ यूज करना है। तो इधर ऑल द इक्वालिटीज आर लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन वी वर अनेबल टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बाय दिस स्मॉल कैलकुलेशन यू कैन आइडेंटिफाई कि वी विल हैव टू ऐड a1 हियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो इसको सबको अनडू करते हैं, वापस प्रॉब्लम पे जाते हैं। चलो इसे मैं अभी हटा दे रहा हूँ, दोबारा से बनाए। तो यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें वी हैव टू यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल, है ना। So let us take solution. So now you can understand कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, तो आई विल कंस्ट्रक्ट पहले तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, है ना। So you can use here because as there is, या पहले इस प्रॉब्लम को आप अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। चलो थोड़ा सा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं ना, फिर आइडेंटिफाई करोगे। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3। अभी तो आप जब सिंपल सॉल्व करोगे तो यू विल बी टेकिंग प्लस x2 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 20, 6x1
plus 5x2 plus 10x3. Suppose I am taking one variable, select variable s1 is equal to 76, and third will be what? 8x1 minus 3x2 plus 6x3 plus s2 is equal to 50, where these x1, x2, x3, s1, s2, they are positive. S1, S2 are your select variables. You know this thing, select variables. Now the coefficient matrix A, है ना, वही स्टेप जो मैं अभी लिख रहा था. Now the coefficient matrix A will be what? 2, 1, minus 6, 0, 0, and this will be 6, 5, 10, 1, 0, and 8 minus 3, 6, 0, 1. And you can see it is not identity matrix. So here you can write one line. You can write there is no identity matrix for starting basis matrix, है ना. So we have to add artificial variable. We have to add artificial variable in the first equation. Okay. तो फर्स्ट इक्वेशन जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी? सो योर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं है, 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 20, है ना. फर्स्ट में हमने a1 ऐड कर दिया बस, प्लस a1 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू था ऑलरेडी. सो द न्यू, हैंस योर न्यू जो अब आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी A, वो अब आपके पास हो जाएगी 2, 1 माइनस 6. अब आपने यहाँ पर ऐड करा इसे, या तो 0, 0, इसे मैंने सॉल्व किया था तो उसको मैंने 0, 0, 1 लिख दिया है. मैंने ये सपोज कर लिया था क्योंकि हम इसे ऐड कर रहे हैं बाद में, तो सपोज 1, 0 को पहले ले रहा हूँ मैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप a1 को कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं. यहाँ मैंने सॉल्व किया है तो इसे मैंने 0, 0, 1 लिख दिया. मैंने माना है कि s1, s2 आपके पहले आ रहे हैं, ये बाद में आ रहा है. इसे कहीं भी लिख सकते हो. that does not make any change in the problem. यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है क्योंकि पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा. ओके. यहाँ पर s1, s2 0 था, इसे थर्ड मान लिया है. 10 थोड़ा सा इधर देखो, it is 10. Now I will construct. So now the initial basic feasible solution is what? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. 6 minus 3 है ना. So you have to put 3, 0. तो कितने 0 पुट करेंगे आप? x1, x2, x3 को 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? a1 is 20, s1 is 76 and s2 is 50, है ना. Because you have n minus m, 6 minus 3. 3 वेरिएबल को 0 पुट करेंगे तो आपको दिख रहा है कैसे 0 पुट करेंगे आप? 3 वेरिएबल्स कौन से होंगे? 3 नॉन बेसिक, x1, x2, x3, इन्हें हम 0 पुट कर देंगे तो ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया. नाउ आई विल स्टार्ट विद फेज 1 क्योंकि मुझे इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 चाहिए. आई डोंट वांट इट्स वैल्यू, इट इज जस्ट एन आर्टिफिशियल. सो आई विल स्टार्ट विद फेज 1, दैट इज योर फेज 1 नाउ. तो फेज 1 में मैंने क्या बताया था? फर्स्टली आई विल कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो द ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, so it will be what? मिनिमाइजेशन ऑफ z, या मैक्सिमाइजेशन में अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्ट आप मैक्सिमाइजेशन लिख सकते हैं. मैक्सिमाइज ऑफ z स्टार इक्वल टू माइनस a1 बिकॉज वी हैव ओनली वन आर्टिफिशियल वेरिएबल. जितने भी होते हैं हम उसको ऐसे ही माइनस, अगर 2 होते हैं तो माइनस a2, 3 होते हैं तो माइनस a3 एंड सो ऑन, बिकॉज यू हैव ओनली वन आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी व्हाट? मैक्सिमाइज ऑफ z स्टार इक्वल टू माइनस a1. ओके. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द सिंपलेक्स टेबल for this new objective function. constant सेम रहेंगे, constant सेम है, बस objective function new बनाया है. so let us construct the simplex table for this. तो next पेज से बना देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ी आएगी. here I am taking your simplex table. now you are familiar with simplex table. हमने 3-4 बार बना लिए.
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा इसमें, है ना। कैलकुलेशन का आपको पता है कि व्हाट इज द पाइवोट एलिमेंट, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द वे. So here you have this CV cost values. Here I write it YB, your basic elements. Here your XB, the value of this, and here I write X1, X2, X3 और क्या लिया है मैंने S1, S2 and A1, है ना. 6 variables are there and the last column is your minimum ratio. You know this thing. मिनिमम रेशियो रेस्ट्रिक्शन आपको मालूम है कि y जो हम डिवाइड करेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव. चलो ऊपर यहाँ पर आपके पास CJ होता है, यहाँ पे CJ लिख देंगे. तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको जो लेना है वो लेना है ऑक्सिलरी वाला. तो ऑक्सिलरी में सिर्फ -1 कोफिशिएंट है A1 का, बाकी सब 0 है. तो CJ में आप क्या लिखेंगे 0 0 0 0 0 -1. बेसिस एलिमेंट्स क्या आए थे आपके A1 S1 S2, ये तो 3 आए थे. इसकी वैल्यू क्या थी A1 वाज 20, S1 वाज 76, S2 वाज 50. इसकी वैल्यू क्या है A1 की वैल्यू कितनी है -1, S1 की कॉस्ट वैल्यू 0 0. और ये जो वैल्यू आपके पास ये वही टेबल है आपकी जो अभी न्यू टेबल हमने बनाई थी ये 2 1 -6. तो इसकी वैल्यू एज इट इज रख देते हैं 2 1 -6 0 0 1 6 5 10 1 0 0 8 -3 6 0 1 0. Okay, now same steps I will find my delta J and I will find the value also of this. So here you can see your max of Z star की वैल्यू क्या होगी C1 भी. तो कितना आएगा यहाँ पर मैक्स Z स्टार देखो -20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20. तो Z स्टार ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था -A1, so its value will be coming -20. ये हम यहाँ लिखते रहेंगे. यहाँ निकालेंगे डेल्टा J. तो डेल्टा 1 इज हाउ मच, क्यों भाई क्या इंटू करेंगे हम किसकी CV इंटू दिस माइनस दिस. तो -1 इंटू 2 0 इंटू 0 इंटू तो -2 -0 हाउ मच -2. दिस इज हाउ मच -1 है ना. यहाँ पर देखो वैल्यू वैसे नहीं आ रही जैसे नॉर्मल आया करती थी. अगर ये नॉर्मल होती तो हम डायरेक्ट बताया था मैंने CJ का नेगेटिव लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल की है. इट विल बी हाउ मच 6. और ये जो आपके पास तीनों जो बेसिक्स मैट्रिक्स हैं ना इनकी हमेशा 0 ही रहेगी क्योंकि S1 S2 A1 दे आर इन द बेसिस मैट्रिक्स. ये हमेशा 0 ही आएंगे. नाउ यू गॉट 2 वैल्यू, so you know -2 is the most negative, so it will be entering variable, है ना, it is entering. And it is ratio. Now we'll find ratio all the positives. So 20 upon 2, it is 10. Then 76 upon 6, it is 12.6. देखो टाइम कम रह गया क्लास में आपकी क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास और है. तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो दिस प्रॉब्लम. बाकी आप अपने आप भी कर सकते हैं. ये आपके पास लीविंग वेरिएबल हो गया भाई बिकॉज इट इज मिनिमम. क्यों तैयार खान? Yes, sir. तो 8 is the pivot element. So I will divide 8 by 1 making it unity and the column entry should be 0. Same thing है ना. ये आपका pivot element है. क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा इसी प्रॉब्लम को. कल कंटिन्यू करूंगा. एक्चुअली प्रॉब्लम ये एक क्लास की है पूरी 40 मिनट्स लगते हैं इस प्रॉब्लम करने में, लेकिन बिकॉज